analysis. Okay, so let's do it. Good evening, Sat Sri Akal, Walaikum Salam. So yeah, did I say it correct? Or Assalamu alaikum, and then we have to say Walaikum Salam. Okay, okay. Okay. I'm learning it. I'm learning every language. I can understand now Kannada half of it. मतलब पूरी तरह से अब कन्नड़ा आ रही है. Hey, I'll kill you. I have, Rasi, when I used to take the classes, these are our previous students. Okay, now they used to tell something bad about me. Okay, I was not able to understand it because it was fully in Kannada, word or not. So this kind of things they have done. They have done prank with me in my classes, word or not. Okay. Okay. Let's do this physics only. Okay, so give the heading graphical analysis, part one. We are going to deal all of those things, all of those graphs. Yeah, day before yesterday, I did a little bit of it, right or not? I tried to make you understand about some basic concepts of the graph, right or not? But right now, today is going to be very, very important task. Okay, so first of all, everyone, थोड़ा सा एक छोटा सा रिव्यू, ठीक है? रिव्यू ऑफ ग्राफिकल एनालिसिस, एक छोटी सी रिव्यू, ठीक है ना? वो रिव्यू ऐसी है, ठीक है? बस तुम लोगों को ये ध्यान दे देना है कि अगर मान लो कोई ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना? अगर मान लो कोई भी ग्राफ है, ठीक, अगर तुम इसमें सबसे पहले जो एंगल की मेजरमेंट करोगे वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के साथ मेजरमेंट करोगे. मींस you will start from the horizontal x axis and you will go towards the y axis, then minus x axis, then sorry, y axis, then minus x, then again minus y, and then you will return back. Now if the theta lies between 0 to 90 degree, in this case remember that tan theta is going to be positive or slope will be positive, right or not? If theta lies between 90 degree to 180 degree, tan theta will be what? Negative or not? सुबिया, yes or no? सुबिया से भी पूछ सकते हैं, सुबिया को याद है कि नहीं है? सुबिया, नेगेटिव ना? Okay, now that means what? Slope is negative. Okay, so till now whatever we have done before this, we did for you try to see, we have taken straight lines. Means with position and time graph also we took the straight line in which we said that it is a uniform velocity graph, right or not? Means if they were traveling equal distances. Okay, first of all, little bit about uniform velocity if you are not aware. So uniform velocity means, remember this, uniform velocity means equal distances in equal interval of time, right or not? One of the most important thing is, uh, uh you have to say displacements, but actually if you see these displacements, they are going to be like some kind of distances only, almost, because they are going to be taken by x2 minus x1 or something like that. Okay, so equal distance displacements in equal interval of time, right or not? So why I'm saying this, like look over here, see this, there are two different cases. Okay, अच्छे से समझना सब कोई, ठीक है ना? अब देखो, बात क्या है कि लेट सपोज this is the particular distance d travel in time t1 and d2 in time t2, right or not? Then if the particular, like if you say that if d1 is equal to d2, if d1 is equal to d2 and also t1 is equal to t2, then this is called as uniform velocity case, right or not? What it is called as? Uniform velocity. Got it? Now if just I change this particular notation, if I just say that this is the distance traveled, okay, and this is the distance traveled over here. So let's suppose this is distance d1 again in time t1, okay, एंड डिस्टेंस d2 इन टाइम t2. तो क्या बोला जा रहा है कि अगर मान लो d1 नहीं है d2 के बराबर और टाइम t1 है एक दूसरे के बराबर, मींस इक्वल टाइम इंटरवल्स है. टाइम इंटरवल कैसा है? इक्वल टाइम इंटरवल है, जल्दी जल्दी लिखता हूं भाई. और ये कैसा है? अनइक्वल डिस्टेंसेस है, अनइक्वल
distance traveled, ठीक है ना? तो then this particular case is called as case of non-uniform velocity. What it is called as? Non-uniform velocity. बस समझ लो, याद रख लो, और कुछ इसमें ये ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसको एकदम से पकड़ के बैठना है ना? क्लियर और नॉट, बताओ? क्लियर? Yes or no? Subhya, is it okay or not? Okay. Now, 1 minute, just 1 minute. Yeah. Let me just take this particular cases. Yeah. Now, so we till now we have done all the particular cases of equal distances in equal interval of times. Okay. So look over here. If you see this, they are traveling equal distances. X1 is equal to X2 means if you see X1, then X2, then X3, all of X1 is equal to X2 and X2 is equal to X3. Means T1 is also equal to T2 and T2 is also equal to T3. So this kind of relations has been established. That's why we are saying velocity 1 is equal to velocity 2 is equal to velocity 3. और इसी की वजह से मतलब हम सारी चीजें यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में समझते हैं. नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाता है? तो नॉन यूनिफॉर्म में डिस्टेंसेस अनइक्वल रहते हैं, ठीक है ना, बट टाइम इक्वल रहता है. तो देखो, अगर मान लो तुम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करोगे, लेट सपोज अगर तुमसे कोई पूछ दे ठीक है कि ये हो गई अपन की एक्स वाई ग्राफ, एक्स एक्सिस, जल्दी जल्दी, एक्स और एक्स पे मान लेता हूँ टाइम है, वाई पे मान लेता हूँ डिस्टेंस है. तो अगर तुम्हारे पास वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, मैं बोल रहा हूँ तुम अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहे हो टाइम के साथ, जिसमें डिस्टेंसेस इंक्रीज कर रहा है, तो ग्राफ कैसा बनेगा तुम्हारा उस टाइम पे? तो ग्राफ बनेगा इस तरह से. ग्राफ कैसा बनेगा गाइस? ग्राफ इस तरह से बनेगा. यहाँ पे नोटिस करो क्या हो रहा है कि धीरे 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 टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी ट्रैवल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. लेकिन तुम खुद नोटिस करो, पहले एक बड़े टाइम इंटरवल पे डिस्टेंस बहुत छोटा था, लेकिन जैसे ही तुम इक्वल टाइम पे जाते हो तो डिस्टेंस क्या हो जा रहा है? डिस्टेंस हल्का सा बढ़ जा रहा है. फिर तुम उस इक्वल टाइम पे जाओ तो डिस्टेंस और बढ़ जा रहा है. समझ में आई कि नहीं ये बात? क्लियर है ना? राशि, सुबह, इज इट ओके और नॉट? अब देखो, अब इसी चीज का यूज मैं करने वाला हूं, है ना? तो सबसे पहले अब हेडिंग डाल दो, नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ओके, एक्सटी ग्राफ, सॉरी, नॉट डीटी. ठीक है ना? बहुत अच्छे अच्छे मैं चीजें अभी करवाने वाला हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है ना? ध्यान से देखना. अब देखो, तो सबसे पहला ही केस ले लेते हैं जिसमें, ठीक है, सबसे पहला ही केस ले लेते हैं, समझते हैं अच्छे से. अब देखो, ये हो गई डिस्टेंस, ये हो गई तुम्हारे पास टाइम. अब डिस्टेंस टाइम तुम्हारे पास ग्राफ हो गई, ठीक है. मैं बोल रहा हूँ कि जो तुमने ग्राफ ड्रॉ किया है वो कुछ इस तरह से कर्व ड्रॉ किया है. कैसे कर्व है भैया? इस तरह से कर्व. अब इसमें बोला गया कि वेलोसिटी के बारे में, कुछ वेलोसिटी के बारे में अपनी पॉइंट्स बताइए. मैं दो पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, पॉइंट पी, और दूसरा पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, पॉइंट क्यू. अब नोटिस करो, अगर हमसे कोई पूछ देगा कि वेलोसिटी, अगर हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो हमें मालूम है वेलोसिटी बराबर होता है पोजीशन बाय टाइम. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं tan थीटा ऑफ xt ग्राफ कैलकुलेट कर लेता हूं, तो इसका मतलब मुझे वेलोसिटी के बारे में मालूम चल जाएगा. तो tan थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे? tan थीटा मतलब टेंजेंट होता है, तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर अगर हमें वेलोसिटी के बारे में बताना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर देंगे. हम यहाँ पे क्या क्या ड्रॉ करने वाले हैं गाइस? टेंजेंट्स. टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे. और एक काम करेंगे टेंजेंट्स का, कि टेंजेंट्स को ये जो एक्स एक्सिस है उसके साथ टच करवा देंगे. क्या करेंगे भाई? ये जो टेंजेंट्स है ना, ड्रॉ कर रहे हैं ना हम, इसको एक्स एक्सिस के साथ टच करवा देंगे. अब नोटिस करो कि जब एक्स एक्सिस के साथ टच हुआ, तो ये एंगल मान लो थीटा ऑफ क्यू है, ये मान लो एंगल थीटा ऑफ पी है. नोटिस क्या करते हो कि थीटा ऑफ क्यू is greater than theta of p or not? Tell me yes or no. That means what? Tan theta of q will be more than tan theta of p or not? Tell me yes or no, guys. Subhya and Rasi, is it okay or not, guys? So therefore, distance. So try to understand. That means what? Velocity at point q will be greater than velocity at point p or not? Tell me yes or no. So what you observe, if theta is more, what will happen in xt graph? Velocity will be also more. Got it or not? So here what is happening, from p to q, what is increasing? Velocity is increasing. Yes or no, guys? What is the condition? Velocity is increasing. So we have got it or not? Tell me yes or no. Are you able to get me or not? ठीक है. तो देखो, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है. जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस व्हाट? एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट. एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सेलरेशन इज देयर? पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज देयर. व्हिच काइंड ऑफ एक्सेलरेशन, गाइस? Positive acceleration is present over here. So this is the first condition of any kind of graph which you will get over like this way. Right or not? Is it okay or not? Can I move ahead?
ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो, तो यहाँ पे तुमने बता दिया कि भैया कि अगर मान लो 2 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं वहां पे क्या क्या हो जा रहा है, ठीक है ना। अगर तुम्हें मान लो, अगर मान लो कभी भी, लेट सपोज मैं एग्जांपल की तरह बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, जैसे तुम मान लो कि तुमने एक कर्व इस तरह से पकड़ लिया, ठीक है। ठीक, ये हो गया तुम्हारे पास टाइम, ये हो गया तुम्हारे पास पोजीशन। देखो मैं इसलिए सारे ग्राफ करवा रहा हूँ क्योंकि देखो मैं बुक के से नहीं कराऊंगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर अरे ये क्या हो रहा है सर, ये तो बुक से मैच नहीं कर रहा है। बट आधे तो बुक्स में ही दिए रहेंगे बाद में क्वेश्चन की तरह, और उन सारे क्वेश्चन को मर्ज करके मैं एक ही जगह बता दे रहा हूँ। अब पॉइंट सेलेक्ट कर लो, पॉइंट पी सेलेक्ट करो, पॉइंट क्यू सेलेक्ट करो, ठीक है, पॉइंट आर सेलेक्ट करो, पॉइंट टी सेलेक्ट करो, पॉइंट एफ सेलेक्ट करो। वेलोसिटी के बारे में चारों तरफ सारे पॉइंट्स के ऊपर कमेंट करना है तुम्हें। तो क्या करोगे, सारे पॉइंट्स के ऊपर तुम टेंजेंट्स ड्रॉ कर दोगे। क्या ड्रॉ करोगे गाइस, टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे। समझ में आई कि नहीं आई बात, क्या ड्रॉ करोगे गाइस, टेंजेंट। समझ में आई कि नहीं आई सुबिया, क्लियर। सारे पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे, ठीक है ना। अब देखो नोटिस करो, देखो यहाँ पे टेंजेंट क्या है, वो फ्लैट मिला, इसका मतलब थीटा की वैल्यू एक्स एक्सिस के साथ कितनी कितनी डिग्री है, 0 डिग्री। कितनी है, 0 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कितना है, 0 है। समझ में आया कि नहीं है बात सुबिया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। Why? Because theta, if theta is 0, tan theta value will be how much? 0. And you know that tan theta for any kind of xt graph, it is equal to velocity of the particle or not, which is equal to displacement by time. So at this particular instant, what has happened that since theta is 0, so particle is not doing any kind of displacement in this shortest interval of time. That's why the velocity of particle is going to be 0. Are you able to get me or not? अरे मतलब एक बात बताओ, तुम खुद सोचो, सुनो अच्छे से समझो कि अगर मान लो एक पेंडुलम मोशन लिया, एक पेंडुलम मोशन अच्छे से देखना, इसको इमेजिन करो, एक पेंडुलम मोशन लेते हो तो पेंडुलम की जो वेलोसिटी है एक्सट्रीम पॉइंट पे कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है कि नहीं हो जाती है, बताना जरा उस इंस्टेंट पे, है ना। उसके बाद मीन पोजीशन के ऊपर जो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम हो जाती है कि नहीं, अगेन एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर 0 हो जाती है कि नहीं हो जाती है। तो ये काइंड ऑफ पेंडुलम मोशन है कि नहीं है, पहले वेलोसिटी 0 हो रहा है, एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, फिर देखो यहां से यहां तक तुम्हारे पास अगर मान लो तुम ऊपर जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बढ़ेगा, फिर रिटर्न आ रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट घट गया। अब इधर जा रहे हो तो थोड़ी वेलोसिटी कम हो गई, उसके बाद ऐसे 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 मोशन हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया गाइस। राशि तुम्हें समझ में आया कि नहीं है बताओ सुबिया, एकदम से सच बताना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये जो एग्जांपल अभी मैं दिया पेंडुलम मोशन का, बताना राशि, इज इट ओके। ओके तो देखो, हम्म, तो वेलोसिटी एक्सट्रीम, ये पॉइंट एक तरह से समझ लेते हो एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है ना। और जब मैं ग्राफिकल कराऊंगा, जब मैं फोर्स वर्क और एनर्जी में जाऊंगा तो तुम लोगों को सिखाऊंगा डबल डिफरेंशिएशन, एक इक्विलिब्रियम की केसेस आती हैं, उस इक्विलिब्रियम की केसेस से भी डिटरमाइन होती है सारी चीजें। ओके, सो कैन यू टेल मी। हाँ 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 हाँ, नहीं 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 नहीं, वो वैसा कुछ नहीं होगा। तो वेलोसिटी ऑफ क्यू जो है, अब वेलोसिटी ऑफ क्यू पे देखो क्या हो रहा है, एरो जो है। सुबह एक बात बताना, मेरे क्वेश्चंस कितने मैच किए थे प्रीवियस ईयर वाले इस वाले नीट में। ऑलमोस्ट इट वाज मैचिंग ना, approximately everything na, Rasi, I have taught them for only 3 months, 3 to 4 months, and almost every question matched over there. The DPP which I provided, approximately the questions came from there. If and actually they messed up in their biology and chemistry this time, not in physics. राशि, आवाज जा रही है ना। हाँ तो आराम से टेंशन नहीं लो। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं यार, टाइम बहुत हम लोग खा रहे हैं। तो वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू क्या हो जाना चाहिए, अब देखो एरो जो है डाउन पॉइंट कर रहा है, जब इसको तुम एक्सटेंड करोगे तो क्या देखोगे कि जो थीटा जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है वो कितना है, वो 90 डिग्री से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे स्लोप कैसा है, मतलब जो tan थीटा की जो वैल्यू है, tan थीटा ऑफ क्यू जब निकालोगे तो वो क्या आ जाता है, नेगेटिव आता है। नेगेटिव कहने का मतलब क्या हुआ कि स्लोप जो हो गई मेरी यहाँ पे नेगेटिव होगा। अगर स्लोप नेगेटिव हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी जो पॉइंट क्यू के ऊपर है वो कैसा है गाइस, एक्चुअली में नेगेटिव है, rather than considering it to be पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी बताओ।
हाँ डाउनवर्ड है, एरो डाउनवर्ड है, उस एरो डाउनवर्ड होने से ऐसा नहीं समझना कि हरदम ही नेगेटिव होगा। एंगल मेड बाय द एक्स एक्सिस इज एक्चुअली 90 प्लस थीटा। सो 90 प्लस थीटा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो रेंज लाई कर रहा है 90 से 180 के बीच में, इसलिए उसकी tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव। आर पे अब देखो, आर पे जब तुम एक्सटेंड करोगे उसी चीज को, तो यहाँ पे जो थीटा हो गई वो क्या हो गई, 90 डिग्री से कम है, तो इस बार थीटा ऑफ आर क्या है, 90 डिग्री से जब कम हुआ तो tan थीटा आर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है आर के ऊपर, जो वेलोसिटी है वो कैसा है, वेलोसिटी पॉजिटिव वेलोसिटी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताना जरा सुबिया, राशि, इज इट ओके और नॉट। हाँ, तो देखो इसी से नीट में इस बार क्वेश्चन आया था, देखो नीट में जो क्वेश्चन आया था, नीट में जो क्वेश्चन आया था वो कुछ इस तरह का था, ठीक है, ऐसे ऐसे ग्राफ बनाया था, ठीक है, मतलब सॉरी, एक मिनट, इसी तरह ऐसे बस दो ही कर्व था, उसमें पॉइंट मार्क कर दिया, ए बी सी डी, पूछ दिया कि कहां पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वो पूछा था नीट में, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्वेश्चन पूछेंगे तो बस बना दो इसमें से, समझ कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर ही है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, है ना, एट पॉइंट टी के ऊपर। और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। और देखो पॉइंट टी के ऊपर एरो डाउनवर्ड है, एक्सटेंड करोगे तो 9 क्या मिलता है कि 180 सॉरी 90 प्लस थीटा मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एट टी भी जो वेलोसिटी एट पॉइंट टी है वो कैसी है, सॉरी नेगेटिव है, कैसी है, नेगेटिव। लेकिन v के ऊपर क्या है, अगेन थीटा बराबर 0 मिल रहा है, फ्लैट लाइन मिल रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट विल बी हाउ मच, 0। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये पूरा कॉन्सेप्ट इजी, एकदम क्लियर है, हो गया ना। अब देखो यहाँ पे तुम हर पार्ट में एक्सेलरेशन भी बता सकते हो क्या रहा है, अगर तुमसे कोई पूछे तो वेलोसिटी एट पॉइंट पी से वेलोसिटी ऑफ क्यूब के बीच में जो वेलोसिटी है वो एक्चुअली नेगेटिव हो रही है, जीरो से नेगेटिव हो रही है, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। अगर डिक्रीज कर रही है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रिटार्डेशन प्रेजेंट है, समझ में आया कि नहीं आया। और इसको बोल सकते हो एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन आल्सो। क्यू से आर के बीच में वेलोसिटी नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है तो एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में प्रेजेंट है। आर से टी में अगेन वही पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब रिटार्डेशन प्रेजेंट है। तो ये सारे चीजों के बारे में, हाँ हाँ, कहां से कहां, पी से टी के बीच में डायरेक्ट, अगर पी से टी के बीच में बताओगे ना तो बहुत सारे यहाँ पे अप्स और डाउन्स है, तो उन अप्स और डाउन्स को कंसिडर करके थोड़ा चलना पड़ता है ना, समझ में आया ना। तो ये सारी चीजों को भी ध्यान में रखना होता है, ओके। कैन आई मूव अहेड, समझ में आया कि नहीं आया, सोफिया क्लियर है ना। अब देखो, अब जो चीज करवा रहा हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो ग्राफ है वेलोसिटी के, ठीक है ना, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजिंग ग्राफ है, पीपल बहुत गंदे इसमें सिली मिस्टेक करके आते हैं, ठीक है। अब ग्राफ जो बोल रहा है कि सर ग्राफ कुछ इस तरह के, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम दी गई है और ग्राफ मेरी, सॉरी एक मिनट, अपवर्ड क्रेसेंट, ठीक है, अपवर्ड क्रेसेंट बनाई गई है, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से मिल रहा है, अब इसके बारे में बताओ कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कमेंट करना है। तो सबसे पहले तो देखो, अगर टाइम बढ़ रहा है तो उसके साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसे जैसे टाइम मेरा इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। अगर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी तो इंक्रीज करनी चाहिए ना, यही बेसिक इंस्टिंक्ट होगी एवरी पर्सन की, है ना। सुबह राशि, यस और नो, बताओ जल्दी से। तो लेकिन यहाँ पे अगर पॉइंट पी और क्यू सेलेक्ट करो, अब देखो चमत्कार, पॉइंट पी पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ठीक है, इसको एक्सटेंड करो, ठीक है, ये एंगल तुम्हारे पास हो गया थीटा। क्यू पे अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो अगर तुम नोटिस करोगे क्यू के ऊपर अगर तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो एक्चुअली में ये क्या हो जा रहा है, ये जो वैल्यू है वो थीटा की इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, मतलब कुछ इस तरह के टेंजेंट्स बन रहे हैं, देखो अच्छे से देखना, ग्राफ कुछ इस तरह का है, एक की जो टेंजेंट है वो इस तरह से बन रही है, ठीक है, दूसरे की जो टेंजेंट है कुछ इस तरह से बन रही है ना। तो नोटिस करो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो हम दोनों का थीटा को कंपेयर करें, ये हो गया थीटा ऑफ क्यू, ठीक है ना, ये थीटा ऑफ क्यू है तुम्हारे पास, ये पॉइंट क्यू का है, ये पॉइंट पी का है, ये तुम्हारे पास बन गया थीटा ऑफ पी। तो एक बात होता है, थीटा ऑफ पी ज्यादा है या थीटा ऑफ क्यू ज्यादा है, जल्दी से सोच के बताओ। थीटा ऑफ थीटा ऑफ क्यू कैसे ज्यादा होगा, एक बात बताओ, अगर तुम राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करते हो तो कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल, अगर अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आता, ऐसे ग्राफ में थीटा वगैरह एक्सटेंड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक काम करो, उसके अगल बगल थोड़ा सा लेंथ लेके उस टेंजेंट का एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, अब ट्रायंगल में घुस जाओ, ये थीटा ऑफ पी हो गई, ये थीटा ऑफ
क्यू हो गई। इसी से हम करते हैं, यही ट्रिक इजी है। तो एक बात होता है, थीटा ऑफ पी अब ज्यादा है या थीटा ऑफ क्यू ज्यादा है, तो दिखाई पड़ता है कि सर थीटा ऑफ पी इज ग्रेटर देन थीटा ऑफ क्यू। अगर थीटा ऑफ पी ग्रेटर देन थीटा ऑफ क्यू, दैट मींस व्हाट, वेलोसिटी एट पॉइंट पी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू। इसका मतलब हुआ क्या कि डिस्प्लेसमेंट तो इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ, बट मेरी वेलोसिटी जो है ना वो यहाँ पे इंक्रीज नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है टाइम के साथ। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ जरा गाइस, यस और नो। सुबिया, राशि, थीटा थीटा चेंज नहीं हुआ है, मतलब ये थीटा के ऊपर कंडीशन दी गई है कि डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ यहाँ पे, उसके वजह से कहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं इस वाले थीटा से। तो ये तो 90 डिग्री से कम ही है ना दोनों। तुम नेगेटिव क्वाड्रेंट पे नहीं जाना कभी, ठीक है। उस थीटा की कंडीशन क्या मैंने बताई कि थीटा की जो मेजरमेंट है वो हम एंटी क्लॉकवाइज बेसिस पे कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है उसके ऊपर हम डिपेंड करता है वो बात। समझ में आया कि नहीं यार, ठीक है। सुबिया, इज इट क्लियर और नॉट? ओके, कंफर्म। तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर तुम्हारी रोड है, ये मेरी लंबोर्गिनी गलाडो हो गई है ना। अब एक बात बताओ, मेरी गाड़ी जो है वेलोसिटी v नॉट के साथ चल रही थी, ठीक है। मैंने अप्लाई किया गाड़ी के ऊपर ब्रेक, जैसे ही ब्रेक अप्लाई करूंगा वेलोसिटी धीरे 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 कम होने स्टार्ट करेगी कि नहीं होगी, जैसे जैसे डिक्रीज करेगी वो मान लो v फाइनल पे पहुंचती है विच इज टू मच लेस देन v नॉट। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएगी, तुम खुद देखो, जैसे जैसे वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है एक चीज जरूर इंक्रीज हो रहा है, और वो है डिस्प्लेसमेंट। क्या इंक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जरूर इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। सो दिस इज द केस, दिस इज द कॉल एज ब्रेकिंग केस। इसको क्या बोलते हैं, अगर कोई तुमसे पूछे कि ब्रेकिंग का ग्राफ ड्रॉ करो, तो ब्रेकिंग केस का ग्राफ कैसा होगा, इस तरह का ग्राफ होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी से। समझ में आया कि नहीं आया गाइस? तो इसको हम बोलते हैं, इसका मतलब क्या, अगर वेलोसिटी सामने के डायरेक्शन में, अगर डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है, ठीक है, और उसी तरफ से वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इनिशियल से वेलोसिटी फाइनल जाती है, जहां पे इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी होती है, तो इस पर्टिकुलर केस को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। वेलोसिटी डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन। तो हियर retardation is present in positive direction, or in positive direction, or along displacement. Clear? Is this clear or not? This was the NEET question 2019. Okay, the same graph, where was the retardation present? Okay, got it or not? Subhya, Rasi, is it okay or not? ठीक है ना। इस तरह से वो क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन आसान नहीं देंगे तुम्हें, वो क्वेश्चन तुम्हें देंगे ऐसा जहां पे तुम्हें तुम्हारी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा तगड़ी रखनी पड़े। अब देखो, एक बात होता है, अब देखो, अब तुमको नोटिस करो, एक एक लास्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ, ठीक है। ये एक्स टी ग्राफ हो गई, एक्स और टी, ठीक है ना। टाइम ग्राफ जल्दी से बता दो वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी यहाँ पे देखो, जो ये जो ग्राफ है, इसके एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देख लो, क्या ये थीटा ग्रेटर देन 90 है कि नहीं है, और लेस देन 180 डिग्री है कि नहीं, बताना जरा। क्या ये थीटा ये कंडीशन अप्लाई कर रहा है कि नहीं, कि ये थीटा जो है वो ग्रेटर देन 180 है और लेस देन 90 डिग्री, यस और नो? हाँ हाँ, यस और नो। तो जब इस तरह की केस आ जाए, तो यहाँ पे जो tan थीटा की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। दैट मींस व्हाट, जो वेलोसिटी है वहां पे कैसी है, नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है। साथ में क्या हो रहा है गाइस, वेलोसिटी अगर नेगेटिव है और डिस्प्लेसमेंट भी टाइम के साथ क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है यहाँ पे। सो डिस्प्लेसमेंट decreasing with respect to time, increasing. Got it or not? Yes or no? Then this particular case will be called as some kind of retardation only, na? Yes or no? Guys, so we are retardation. Rasi, is it retardation? Is it retardation? Think again, think again. Is it retardation? Tell me perfectly. Think again.
सोचो। अच्छा, इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो रोड है, ठीक है, आज ग्राफ पे तुम लोग बहुत टाइम लगाने वाला हूँ, मुझे मालूम चल गया। सोचा था जल्दी हो जाएगा, बट ग्राफ तुम लोग की कमजोर है, ग्राफिकल एनालिसिस। सुबह ऐसे करवाया था कि नहीं करवाया था क्लास में? और देखो, अगर मान लो ये कार है ना, जो ट्रैवल कर रही है, एक बात बताओ, लेट सपोज दिस कार हैज केम टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट पी, राइट और नॉट? मान लो यहाँ पे वो आ जा रहा है कार, यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है ना, यहाँ पे एक प्लांट है, वहां पे कार आके खड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर कार यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेगा, तो एक बात बताओ, ये सम लेट सपोज मतलब ऐसा मान लो कि वो प्लांट से स्टार्ट किया था, मींस इनिशियल पॉइंट प्लांट था और यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। तो इसने कुछ, इस कार ने कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है कि नहीं किया है? डिस्प्लेसमेंट एस ट्रैवल किया है ना। ये तुम्हारी कार हो गई, ठीक है, यहाँ पे पर्सन ड्राइव कर रहा है, तो ये पर्टिकुलर कार हैज केम सम काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस फ्रॉम द ट्री और नॉट, इस ट्री के रेस्पेक्ट में ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर दिया। अब क्या क्या कर रहा है कि वो इंक्रीज इन द वेलोसिटी के साथ, कैसा कैसा गाइस, इंक्रीज इन द वेलोसिटी के साथ वो क्या कर रहा है, वो यही प्लांट के तरफ पीछे से मुड़ रहा है। अब एक बात बताओ, जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ेगा प्लांट के तरफ, वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी धीरे धीरे, लेट सपोज वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही, लेट सपोज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही वो प्लांट की तरफ मुड़ गया। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, प्लांट की तरफ जा रहा है, तो एक बात बताओ, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा कि नहीं होता जाएगा? बताना जरा गाइस, यस और नो? ए सुबिया, राशि, यस और नो? राशि, नहीं समझ में आया? एक बात बताओ, ये हो गई प्लांट मेरी, यहाँ पे उस प्लांट के पास से डिस्टेंस एस ट्रेवल करके कार मेरी यहाँ पे आके रुक गई है, ये मान लो पॉइंट पी हो गया, ठीक है। अब कार यहाँ से, हाँ हाँ हाँ, उसने प्लांट से स्टार्ट किया, फिर पॉइंट पी पे आया, पॉइंट पी के पास कार टर्न ले रही है, वेलोसिटी v के साथ इधर की ओर ट्रैवल करना। हाँ, तो अब एक बात होता है, जैसे ही वो प्लांट की तरफ मुड़ के टर्न ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे, क्या अगर टाइम बढ़ता है तो ये डिस्प्लेसमेंट एस डिक्रीज होते जाएगा कि नहीं होता जाएगा? बताना जरा। हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जब डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसकी ग्राफ कैसे बनाओगे? तो दिस इज द ग्राफ। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कैसा होता जा रहा है? धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम थीटा को देखें, तो थीटा है 180 और 90 के बीच में, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी मेरी नेगेटिव शो हो रही है, वेलोसिटी नेगेटिव। रिटार्डेशन नहीं है, रिटार्डेशन नहीं है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखो, डिस्प्लेसमेंट की इनिशियल डायरेक्शन किधर थी? टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ठीक है। लेकिन सुनो, पहले मतलब प्लांट से जब कार इधर आई, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर थी? टुवर्ड्स लेफ्ट साइड थी कि नहीं थी? बताना जरा, है ना। लेकिन लेकिन अभी क्या है, जैसे ही वो वेलोसिटी, जैसे ही वो टर्न ले रहा है, उसका वेलोसिटी किधर की ओर मुड़ जा रहा है? लेफ्ट, मींस राइट साइड में मुड़ जा रहा है कि नहीं मुड़ जा रहा है, एज कंपेयर टू द लेफ्ट साइड? So that means what is this velocity is opposite of the displacement. If this velocity becomes opposite of the displacement, velocity becomes negative, right or not? So देखो, रिटार्डेशन कब बोलना है? रिटार्डेशन इस केस में बोलना है जब तुम नोटिस करो कि हर एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे वेलोसिटी अलग है, दूसरे पॉइंट पे वेलोसिटी अलग है, और दूसरे पॉइंट की जो वेलोसिटी वो पहले पॉइंट से कम है, तब रिटार्डेशन। यहाँ पे नोटिस करो, हर पॉइंट के ऊपर अगर तुम ट्रायंगल ड्रॉ करते हो, यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करो, यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ, कहीं भी ट्रायंगल ड्रॉ करो, ये जो थीटा है वो चारों तरफ सेम है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी ऑलवेज सेम है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या शो हो रही है? नेगेटिव शो हो रही है। समझ में आया कि नहीं ये बात? कितना दूर क्लियर है? सुबह राशि, इज इट ओके? और सर के ऊपर से उड़ गया? सुबह समझ में आया? कसम से? राशि, राशि समझ में आया ना? ठीक है। तो सर के ऊपर से उड़ाना नहीं है। देखो मतलब तुमने जब ऐसी थीटा देखा, तो थीटा को देखने के बाद क्या मालूम चला कि सर ये तो यूनिफॉर्म डिक्रीज इन द डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, यहाँ पे यूनिफॉर्म डिक्रीज इन डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रही है, ठीक है, टाइम के साथ में। ऐसा नहीं हो रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी धीरे 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 मतलब जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट वो धीरे 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 क्या होते जा रही है? जीरो होते जा रही है। तो डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, velocity is negative but constant in magnitude, right? That constant in magnitude, इस तरह के ग्राफ को देख के, है ना।
तो ये सब छोटी छोटी सिली सिली मिस्टेक है जहां पे तुम्हें फंसाया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका मतलब बोल सकते हो कि वेलोसिटी इज ऑपोजिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट और नॉट। ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हारी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट हो। जैसे मान लो अगर तुम एक जैसे वो क्रिस वगैरह मूवी देखती हो ना, क्या होता है, कार सामने से आता है, क्रिस रोक डालता है। कैसे रोक डालता है? क्योंकि पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट फ्रंट की ओर है, बट ये जो पर्सन है इसकी जो वेलोसिटी लगा रहा है उस कार के ऊपर किधर क्यों लगा रहा है, बैक साइड में। जैसे ही वेलोसिटी बैक साइड हुई डिस्प्लेसमेंट की, तो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में सेम रहेगी, बट क्या हो जाएगी, नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन उसका अपोजिट हो जाता है ना। अब ये मत पूछना ये कैसे है, तो सर जी वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइड बाय टाइम वेक्टर। इफ वन वेक्टर इज अपोजिट ऑफ अनदर वेक्टर आई हैव टू यूज द नेगेटिव साइन ओवर हियर, दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अभी ठीक हुआ? राशि आंसर हो गया? इज दिस हो गया और नॉट? कैन आई मूव अहेड? सो राशि समझ में आ गई बात? राशि क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? ठीक, चलो 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 जल्दी धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम धूम धूम। One day, okay, when you become doctor, do too much of घूसखोरी, take too much of bribes, then purchase me a Ducati for me, buy it or not, as a gift to teacher. Do not save the bribe for yourself, buy it or not. Okay, become a good corrupted doctor in the universe. Can we move ahead? That's our motivation. More money, more money, more money is the motivation. Yes or no, Surya? Can we move ahead? So now look over here. Looking at this graph, what we can say about the velocity? Anything, any comment? Displacement? Okay, सबसे पहले तो displacement time के साथ increase कर रहा है, सही है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ, मतलब भैया डिस्प्लेसमेंट घट रहा है तो या तो रिटार्डेशन होगा या तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ डिक्रीज होगा, है ना। यही पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट है। अब देखो सेलेक्ट कर लो कि वेदर वी वांट टू नो अबाउट द वेलोसिटी और नॉट। सेलेक्ट कर लो दो पॉइंट्स यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, है ना, सॉरी, पॉइंट पी क्यू, पी पी सेलेक्ट कर लो, क्यू सेलेक्ट कर लो, टेंजेंट ड्रॉ करो, छोटा सा टेंजेंट। अब इस टेंजेंट के ऊपर ट्रायंगल ड्रॉ कर दो, बेटर है ट्रायंगल यहीं पे, राइट एंगल ट्रायंगल, rather than extending just draw the right angle triangle over here, right or not? ठीक है ना। जस्ट ट्रायंगल तुमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब एक बात बताओ, नोटिस करो वेलोसिटी एट पॉइंट पी, अगर पॉइंट पी के ऊपर बात करते हो तो यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है और यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, किसकी एंगल ज्यादा बड़ी बड़ी है? सो थीटा ऑफ पी इज मच मोर ग्रेटर देन, वेट आई विल राइट 180 minus theta p is greater than 180 minus थीटा क्यू और नो। टेल मी यस और नो गाइस, यस और नो, अब तो बता दो। देखो ठीक है, p की जो 180 माइनस थीटा p है वो ज्यादा बड़ी है 180 माइनस थीटा क्यू। अब tan tan एक तरफ लगाओगे तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ थीटा p इज ग्रेटर, सॉरी सॉरी, यहाँ पे लगा दो tan ऑफ 180 माइनस थीटा p इज ग्रेटर देन tan ऑफ 180 माइनस थीटा क्यू। ठीक है ना। यहाँ पे तुमने क्या कर दिया, ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, tan 180 माइनस थीटा पी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक बात बताओ, माइनस ऑफ tan थीटा पी हो गया इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ tan थीटा क्यू। लेकिन जैसे ही अगर तुम नेगेटिव नेगेटिव कट करने का कोशिश करोगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ऑफ थीटा पी विल बी एक्चुअली लेस देन थीटा ऑफ क्यू। समझ में आया कि नहीं यही बात? तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी एट पी इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ क्यू और नॉट। और नोटिस करो यहाँ पे अगर तुम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हो तो किसकी राइट एंगल ट्रायंगल बड़ी है, वो देखो। क्यू के ऊपर बड़ा सा परपेंडिकुलर मिल रहा है, पी के ऊपर छोटा सा परपेंडिकुलर मिल रहा है। देखो नोटिस करना है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास वेलोसिटी एट क्यू कितना है, ज्यादा है। समझ में आएगी नहीं, यही बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? सुबिया राशि, इज इट ओके और नॉट? ओके, जैसे ही तुमने मालूम किया कि वेलोसिटीज तुम्हें मालूम चल गई हैं, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है।
वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ। अब बताओ अब क्या हो रहा है एक्चुअली में, ये तो बड़ा चमत्कार हो गया भैया, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी मेरा इंक्रीज कर रहा है। अब बताओ, तो पहला ही केस वही वही बुकाटी। हाँ, ये पहला ही वाला केस, इसी में देखो, इसी में हम प्लांट के पास आ रहे हैं, इस बार हम प्लांट के पास आ रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर की ओर प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। और जब हम रिटर्न हो रहे हैं ना इधर की ओर, जब हम राइट की ओर प्लांट के पास रिटर्न हो रहे हैं, तो हमारी वेलोसिटी टाइम के साथ क्या होते जा रही है, इंक्रीज करते जा रही है। जब वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होगी। अब देखो एक बात बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ इसी चीज को, क्या मैं बोल सकता हूँ कि सर जी यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ पड़ा है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी अगर इंक्रीज करने लगे तो टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुआ तो वहां पे क्या प्रेजेंट है, एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इन दिस ग्राफ एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट opposite with respect to the net displacement of the car। yes or no, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ जरा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजिंग with respect to time, velocity is increasing, that means what, acceleration is present in opposite direction of displacement। सगा लगा, बूम बूम। क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट, जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया ना, आगे बढ़े। सुबिया, इज इट ओके और नॉट। हाँ, तो ये सारी इतनी सारी चीजें थी, तुम लोग अगर मान लो, अगर ये सारी इतनी सारी वेलोसिटी तुम लोग को बुक सर्च करते करते टाइम लग जाएगा कि सर ये सारी चीजें बुक्स में है कहाँ। अरे सर ये तो आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, ना ही कहीं किसी और बुक में मिला, फिर आपको ये खजाना मिला कैसे। तो खजाना अनुराग सर के एक्सपीरियंस के ऊपर है, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली में, जो चीज नहीं दी गई रहती है तो वहीं से तो काम है नीट को पूछना, ठीक है। हाँ बताओ। तो न्यूमेरिकल ही तो होगा इससे, हो जाएगा। अगर मैं चैलेंज लेता हूँ, अगर तुम्हारे सारे ग्राफ के क्वेश्चन अब नहीं बन गए तो मेरा नाम अनुराग मिश्रा नहीं। तुम उठा लेना प्रीवियस ईयर, देख लो ग्राफ के, अगर इससे ऊपर आएगा, अभी एक और क्लास होगी ग्राफ की, तब उसके बाद देख लेना, अगर उसके ऊपर आ जाए तो फिर तुम बताना मेरे को, है ना। तो देखो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब बताओ इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट अगेन डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, जल्दी से बताओ जल्दी से। हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर्स डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। अब देखो, अब अगेन सेलेक्ट कर लो दो पॉइंट्स, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू, टेंजेंट ड्रॉ करो, है ना। अब नोटिस करो, अगर पॉइंट पी के ऊपर ट्रायंगल ड्रॉ करते हो तो ट्रायंगल जब ड्रॉ होगा तो वो बड़ा ट्रायंगल ड्रॉ होगा। अगर पॉइंट क्यू के ऊपर ड्रॉ करते हो तो टेंजेंट ड्रॉ होगा, मींस पर्टिकुलर ये जो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल वो छोटा ट्रायंगल होगा, इसकी परपेंडिकुलर छोटी होगी। इसका मतलब क्या है कि ठीक, इसका मतलब पर्टिकुलर tan थीटा एट p जो है वो ज्यादा है तुम्हारे एज कंपेयर टू tan थीटा ऑफ q। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट p इज मच मोर देन वेलोसिटी एट पॉइंट q। समझ में आया कि नहीं, अब तुम लोग पकड़ने लगे हो कि नहीं पकड़ने लगे हो, जल्दी से बताओ। हाँ समझ में आ गया ना। सुबह इज इट ओके और नॉट। तो धीरे धीरे मैं धीरे धीरे ट्रिक सिखा। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू सुबिया यार। तो डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो अब ये बात तो समझ में आ गई ना कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p इज मोर एट पॉइंट p इज मच मोर देन वेलोसिटी एट पॉइंट q। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट भी डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे, वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल भी डिक्रीज कर रहा है कि नहीं। क्या हो रहा है कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताना जरा। अरे यस और नो, ठीक। अगर ऐसा कंडीशन है तो वो क्या रहा है एक्चुअली, अब बताओ जरा, कोई एग्जांपल बता पाएगा एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बारे में। तो इसका मतलब क्या है कि हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सर अगर आपने ये प्रीवियस केस किया है, अगर हम रिटर्न डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारी वेलोसिटी रिटर्न वाले डायरेक्शन में भी जीरो मतलब डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब इंस्टेड ऑफ एक्सेलरेशन क्या प्रेजेंट है अपोजिट डायरेक्शन में,
रिटार्डेशन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है अपोजिट डायरेक्शन में? रिटार्डेशन। हाँ, इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीजिंग with respect to time, therefore which implies retardation is present in opposite direction. क्लियर है ना? जल्दी से बताओ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया, है ना? क्लियर है? सुबिया, राशि, इज इट ओके और नॉट? सुबिया, इज इट ओके और नॉट? ठीक है, तो बस इन सारे चीजों को याद कर लो, यही तुम्हारे थे कौन से ग्राफ, तो भैया डिस्प्लेसमेंट टाइम टाइम के बहुत सारे ग्राफ। अब देखो मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, देखो हर केस में तीन चार केस उभर के आ रही हैं। पहले तो अगर तुम खुद नोटिस करना, अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत होता है तो ये मतलब छह टाइप्स के ग्राफ है, ठीक है ना? इसे डिवाइड कर दे रहा हूँ, है ना? फर्स्ट ग्राफ अगर तुम देखोगे तो इंक्रीज इन मींस कांस्टेंट वेलोसिटी का है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। अब वही कांस्टेंट वेलोसिटी दो तरह से हो सकती है, एक ऊपर इस तरह से हो जाएगी, एक इस तरह से हो सकती है कि नहीं? तो दोनों केस में अलग अलग ग्राफ बन के आ रहे हैं, एक कनकेव अप है, एक कनकेव डाउन है। समझ में आया कि नहीं आया? इसको तुम यहां से भी कंसिडर कर सकते हो, है ना? तो इस वाले केस में एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, इस वाले केस में रिटार्डेशन प्रेजेंट है, सेम फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है? अब ग्राफ हो जा रही है अपोजिट केसेस की, ये है डिस्प्लेसमेंट अपोजिट केसेस के, ठीक है? ये सेम डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है यहाँ पे तीनों केस में। एक में कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे जो हो रहा है, क्या हो रहा है, तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंट है, वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज कर रही है सेम डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इन ऑल्दो इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी, बट डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या प्रेजेंट है? रिटार्डेशन प्रेजेंट है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताना जरा। इज दिस ओके और नॉट? यही तीनों केस बताया ना अभी, है ना? यस। अब देखो, अब यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है वो प्रेजेंट है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। सेकंड केस आता है इसी का, एक कॉनकेव, मींस कॉनकेव की तरह आता है। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है अपोजिट डायरेक्शन में? एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। और एक तुम्हारे पास कॉन्वेक्स होके आता है, ठीक है, जहां पे क्या प्रेजेंट है अपोजिट डायरेक्शन में? रिटार्डेशन प्रेजेंट है। समझ में आया कि नहीं आया? छह तरह के ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के, और इसको समझ लो तो काम खत्म। बस इसी पे क्वेश्चन आने वाले हैं तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताना जरा। हाँ बताओ। कौन सा कौन सा? हाँ हाँ, इसमें सेकंड रो का फर्स्ट, ये सही पकड़ा हूं ना मैं? कौन सा? ये वाला, ये वाला 1 2 3 4। अब बोलो, नंबरिंग डाल दी। ये रो कॉलम मुझे नहीं आती भाई, मैं तो मतलब सबसे गंदा इंसान हूँ मैट्रिसेस में, ठीक है? मतलब मुझे तो आती ही नहीं है मैट्रिसेस रो कॉलम का। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज समझो। ये जो फोर्थ वाली जो ग्राफ है, इसमें क्या मैं बोला, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रही है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन किस डायरेक्शन में प्रेजेंट है? अपोजिट डायरेक्शन में है, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये देखो मैं लिखा हूं, वेलोसिटी इज नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट बट कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर है ना? फिफ्थ वाला और सिक्स वाला, फिफ्थ वाले में मैंने क्या बोला कि जब तुम्हारा पार्टिकल इधर आ रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा लेफ्ट साइड है और पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज इन द वेलोसिटी कर दे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन वही डिक्रीज इन द वेलोसिटी कर दे, तो वहां पे क्या प्रेजेंट होगा? रिटार्डेशन प्रेजेंट होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो नोटिस करो उसका ग्राफ कैसे बनाया। तो अगर तुम्हारे यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे ही तुम पॉइंट कंसिडर कर रहे हो पी और क्यू पे, ट्रायंगल ड्रॉ करो, नोटिस क्या करते हो, क्यू के ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल बड़ा है एज कंपेयर टू पी, दैट मींस व्हाट, क्यू हैज द मोर वेलोसिटी एज कंपेयर टू पी। इसका मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, बट इन विच डायरेक्शन? अपोजिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वर्ड और नॉट? समझ में आया कि नहीं है बात? और यहाँ पे जब चले जाते हो तो ट्रायंगल ड्रॉ करो, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल पी पे बड़ा है एज कंपेयर टू द क्यू। वर्ड और नॉट? तो जब ऐसा केस आया तो इसका मतलब क्या हो रहा है भाई साहब, कि वेलोसिटी एट पॉइंट पी इज मच मोर देन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू। इसका मतलब क्या है?
डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, हाँ रिटार्डेशन इज ऑल्सो प्रेजेंट, हाँ राइट और नॉट, opposite in direction, right or not Subhya, is it okay or not? क्लियर है ना, चमका कि नहीं चमका एकदम से? ठीक है, तो अब हमारे पास एक बच गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और उसके थोड़े से प्रॉपर्टीज वगैरह, है ना। अब देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ही थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है जो मैं तुम लोगों को कराने वाला हूँ, है ना। तो यहाँ पे डाल दो एक्सेप्शन जो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसके बाद सीधा हम लोग पहुंच जाएंगे एस इज इक्वल टू वो सारे जो इक्वेशंस है ना उसके ऊपर 15 अलग अलग तरह के मैं न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ, ठीक है। ग्राफ में अब तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें एक प्लेलिस्ट सेंड करूंगा, बस उसको देख लो, एक आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और इसके ऊपर मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन सीरीज एवरेज वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं कल करवा देने वाला हूँ, है ना। तो कल नहीं, कल वेलोसिटी टाइप कराऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट, हाँ कल मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसके बाद मैं नेक्स्ट डे पे ये क्वेश्चन करवा दूंगा, उसके बाद सीधा हम लोग जंप मारेंगे। गाइस इज, हाँ वो लाइट चली गई थी, इज आई ऑडिबल ना? ओके, ना लो ओवर हियर, ठीक है। अब देखो एक्सेप्शन हम लोग करने वाले थे डिस्प्लेसमेंट टाइम का। देखो क्या है कि सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो दी गई है वो इस तरह से कर्व है, ठीक है, मतलब उल्टी बॉल, ठीक है। और मान लो मेरे को भगवान जी ने बेघर बना दिया किसी दिन, तो मैं बेघर बन के और रोड पे घूम के भीख मांग रहा हूँ, एक बार उल्टा बॉल रखा हूँ, एक बार सीधा बॉल रखा हूँ, ठीक है। थर्ड केस है, यही तीन पूछने वाले हैं वो तुमसे, है ना, ठीक है। थर्ड केस बोल रहा है कि लेट सपोज द ग्राफ इज लाइक दिस वे, है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है ना, स्ट्रेट है लीनियर ग्राफ, ठीक है ना। तीनों के ऊपर कमेंट करो, जल्दी से कमेंट कर दो एक्सेलरेशन वगैरह का, बताओ क्या हो रहा है। ठीक है, लास्ट वाले का तो सबसे बड़ी बात पता है, एक्सेलरेशन जीरो। सर यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ एज द डिस्प्लेसमेंट of the particle is increasing and जो displacement traveled है वो इक्वल ट्रैवल हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट था। लेकिन इन दोनों ग्राफ में क्या हो रहा है उसको समझने के लिए हमें सेलेक्ट करने पड़ेगा तीन पॉइंट्स, ए बी और सी। सो वी आर पेज नंबर 128 आकाश मॉड्यूल, गॉट और नॉट, देख लेना उसी में दिया हुआ है कि नहीं, दिया हुआ है ना। तो ask from Subhya. I used to tell in where the questions are in Etsivama. Yes or no, Subhya? ठीक है। अब देखो तीनों तुमने यहाँ पे देखो सुबह जो तुम्हारे उस ग्राफ में दिया हुआ है, उस बुक में दिया हुआ उतना एक पेज का लर्न करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अब तो हम क्या कर रहे हैं, हम
हाँ, तीनों हम क्या किए कि 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, ठीक है ना। 3 पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद अब देखो यहाँ पे नोटिस करो, पॉइंट ए के ऊपर एरो अप है, ट्रायंगल अप है, मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री के बीच में है, ठीक है ना, 0 से 90 के बीच में। तो यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव, यहाँ पे बी के ऊपर वेलोसिटी क्या हो गई 0 और सी के ऊपर वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और इसका भी सुपिया नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, बताना जरा। वेलोसिटी एट बी कितनी हो गई 0, वेलोसिटी एट सी कितनी हो गई पॉजिटिव। अब नोटिस करो इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में एज द पर्टिकुलर, वेट 1 मिनट, यहाँ पे तुम्हें लगेगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0। ओके, तुम ऐसा लगेगा कि अरे सर पहले डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है फिर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, ऐसा कहना नहीं कभी भी, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ पे आ जाने का इसका मतलब ये नहीं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल 0 हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। तो देखो क्या है एक्चुअली में, हो क्या रहा है कि पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, फिर वेलोसिटी 0 हो रही है, फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रिटार्डेशन प्रेजेंट है, करेक्ट। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रिटार्डेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन पहले नेगेटिव है, फिर 0 हो रहा है, फिर पॉजिटिव हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक्सेलरेशन प्रेजेंट, ठीक है ना। तो इसी पर्टिकुलर केस को उसने उतने बड़े लाइन में दिखाया है, समझाया है, बट इसको हम लोग इस तरह से समझ लेंगे। नेक्स्ट थिंग, इसी चीज को हम लोग समझेंगे एक बार और, कहाँ समझेंगे, जब मैं इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो कॉनकेव ऑफ इक्विलिब्रियम, कॉन्वेक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ये जब डिस्कस करूंगा तब इन सारी चीजों को डिस्कस करूंगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ जरा। तो ये सारे ग्राफ तुम्हारे एक्स टी के कंप्लीट हो गए, अब बचा है वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ जो मैं कंप्लीट करूंगा कल, है ना। इज दिस ओके और नॉट। हाँ ठीक है ना, एक मिनट।